Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee. And he is a known face. And DY Patil College in Pune also he represents. But the main aspect of today is I requested him, and within no time he said yes. There were many calls. Sir, what is this nonsense going on? In Telugu also, main stream media and all, again, they are creating a fear. Today is Telangana Formation Day, June 2nd, 2014. The new state has been carved out. So my best wishes to the people of Telangana and the people of Andhra Pradesh, from where the boundaries got separated with different accents of Telugu and identity. I wish them the best. And in saying so, as many lives were sacrificed for Telangana, similarly, many precious lives were sacrificed in the name of science, truth, and logic, in the name of COVID-19. Still, many are dying. Unfortunately, we were trying to create a scientific dissemination of information so that people understand, they don't get bothered, nor they land into excitement or anxious states. Safe health regimen, good diet, and happiness, health and happiness. But again, these market forces, COVID-19, so many cases across India. I am challenging all of them, including the Health Minister, Prime Minister Modi. Show the cases. From where did you register these cases? And why did you register these cases? And how good diagnostically is the test which are you conducting now to detect COVID-19? मोदी जी, अमित शाह जी कितना गुमराह कर रहे हैं और लोगों को दुनिया में। क्या ये जानलेवा है क्या कोविड-19? आप टेस्ट क्यों टीबी के लिए क्यों नहीं कर रहे? मलेरिया, डेंगू, जानलेवा जैसे बीमारियों का टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं उनको कोविड-19 के टेस्ट से? पीसीआर टेस्ट कहां तक? एक पपाया लगाया, एक गधा को लगाया अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स, वो भी पॉजिटिव आया। इसीलिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डरो मत, जो डरा वो गया। आप उनसे पूछिए कोविड-19 कहां से है। और हम लास्ट टाइम भी बता चुके हैं, कॉमन कोल्ड हर किसी में होता है, उसको लेकर डराया गया है, और ताकि उसके पहले ही वैक्सीन जो थे उसको इस्तेमाल किया गया है और उसके साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है। इसीलिए हम क्लियरली कह रहे हैं, टीका में क्या है, ये कोविड-19 पीसीआर टेस्ट कहां तक हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? और कोविड-19 है कहां? ऑटोप्सी किया है क्या? पोस्टमार्टम किया है क्या? डिड यू डू ए पोस्टमार्टम? Are malaria, TB, dengue more dangerous than COVID-19? COVID-19 is a common cold which you have exposed. But why are you creating this fear? Because you have still leftover vaccines to be administered. Still, I'm again warning people, a vaccine takes minimum of 10 years trial. Safety, efficacy, immunogenicity, peer review, smaller and larger groups. It takes ages. And that too for a disease called common cold, 99.99% recovery on its own by WHO and every country. When entire world is fighting, the Commando Kennedy has exposed, he said, our diseases are chronic diseases because of packed food and the lifestyle which has affected America. So we don't bother and we are out of WHO, he said. And America is out. Then why Modi and India still continue with this pandemic treaty and World Health Organization? That is where doubts are raised, including all the political parties. That is why this show is important, to remove, to clear those doubts and fear. You believe in science, you believe in truth, and you believe in logic. We are here to provide you information as per rule of law, constitution, invoking evidential act with all evidences. So I'll take as a foreword from our Bhishma Pita of community medicine, Amitav Banerjee ji, before I show you, as he has been preaching for the last 4 years, Amitav Banerjee, another country, Australian senator, towing the line of Dr. Amitav Banerjee. That also I'll show you. Sir, please, क्या डरा रहे सर लोगों को? Again, नमस्ते रेड्डी साहब, और दर्शकों को भी नमस्ते। एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा। सर जी। नोवोवैक्स तैयार है, नया वैक्सीन तैयार है।
और ये सीरम इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ नोवोवैक्स ने क्लेम किया है कि क्योंकि आजकल एमआरएनए वैक्सीन काफ़ी बदनाम हो रहा है, मायोकार्डाइटिस वगैरह जो सीनेट हियरिंग्स चल रहे हैं यूएसए में, हम्म, तो नोवोवैक्स बनाया है कोविड का नए वेरिएंट हम्म, ओमिक्रॉन JN.1 और सब वेरिएंट्स में काम करेगा, ये इनका दावा है। ओके। और ये कहेंगे कि इसमें मायोकार्डाइटिस भी नहीं होता है, तो इसीलिए इसका अभी इसको लाइसेंस मिला है। काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था, अभी इसको इसी साल लाइसेंस मिला है। हम्म, और इसके लिए ये आपका पिच तैयार करना है, नया बॉलर आने वाला है। और स्पिनर के लिए जैसे पिच बनाते थे, ऐसे पिच को स्पिनर के लिए फिर स्पिनर वो गेम स्पिन करेंगे। क्योंकि जैसे रेड्डी साहब ने बताया कि 99.99 नॉर्मल सर्वाइवल है, और अभी सब वेरिएंट वगैरह और हल्के हो जाते हैं, ये तो नेचर्स लॉ है। तो अभी आप कोई भी वैक्सीन लॉन्च कर दो तो वो कहेंगे देखो ये तो ये हो गया, सेव हो गया, और वैक्सीन ने बचा दिया। नंबर वन। नंबर टू, एक ही वायरस का क्यों कर रहे हैं टेस्टिंग? इन्फ्लुएंजा वायरस भी ज़्यादा घातक होता है, कोविड वायरस से बच्चे लोगों की जान इन्फ्लुएंजा वायरस में ज़्यादा जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के भी म्यूटेशंस होते हैं, वो तो टेस्ट नहीं कर रहे आप, खाली इसका। क्योंकि अभी जो पैनिक है उसको चलाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के एक तो अभी हर चीज़ अपने एडवांटेज में लेना चाहते हैं। लोगों को अभी शक हो गया है, बोला चलो ठीक है वो लैब से बना है, तो जिसमें लोग और डरे कि ये तो अननोन वायरस है, ये तो खतरनाक है, ये तो लैब से है। इन्फ्लुएंजा वायरस तो नेचर का है, तो हालांकि इन्फ्लुएंजा वायरस भी म्यूटेट होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ज़्यादा ये होते हैं। और इसका आप लिंक करो दो और दो और दो, क्योंकि एक तो पैंडेमिक ट्रीटी को जस्टिफाई करना है, क्योंकि पैंडेमिक ट्रीटी अमेरिका अलग हो गया है और अमेरिका काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, तो बाकी कई कंट्रीज में जो जनता है वो पैंडेमिक ट्रीटी के अगेंस्ट है। पर जो गवर्नमेंट्स है, जो पॉलिटिशियंस है, बिकॉज इट इज़ इजी टू कंट्रोल थ्रू WHO, थ्रू अ पैंडेमिक, इमेजिन्ड पैंडेमिक और रियल पैंडेमिक। मोस्टली इमेजिन्ड ही होते हैं पैंडेमिक। अभी हम मिडिल एजेस में थोड़ी है कि प्लेग से मर गए, पूरा गांव साफ हो गया, या स्मॉल पॉक्स से साफ हो गया। अगर आज के 21st सेंचुरी में अगर वर्ल्ड में पेंडेमिक होता है तो हमारा मेडिकल साइंस फेल हो गया, इसका मतलब। बिकॉज वी शुड डेवलप। हम फिर क्या मिडिल एजेस में है क्या? मिडिल एजेस में जब एक्चुअल पैंडेमिक्स होते थे, मिडिल एजेस में एक्चुअल पैंडेमिक्स होते थे, अभी हम इतने आगे आ गए हैं। आप हम मिडिल एजेस में अच्छा, उस टाइम कभी सुना है मिडिल एजेस में कभी लॉकडाउन सुना है, कभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन सुना है, कभी स्कूल बंद सुना है? लोग सरवाइव हुए ना। और अभी अगर कोई डिजीज जिसका 99.1, 99.9 सर्वाइवल इवन वुहान वायरस का था, ओरिजिनल वायरस का था। अभी आप कोई भी अगर डेथ होगा उसका पॉजिटिव, तो कितने वायरसेस है, आप खाली आप इसी का टेस्ट क्यों कर रहे हो? इन्फ्लुएंजा वायरस भी मिल जाएगा, आप उसको इन्फ्लुएंजा डेथ क्यों नहीं बोलते हो? आप सेलेक्टिव कर रहे हो। दिस इज अ टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई चीज़ को निकाल रहे हो और उसको इन्फ्लेट कर रहे हो, और रोज मीडिया ये कर रहा है। जब कोई कोमोबिडिटी से मर रहा है और वायरस आ रहा है तो आप कहते हो कि ये कोविड डेथ। पर अगर मान लो कोई टीका लगाता है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, यंग पर्सन को जिसको कोई रिस्क नहीं है, आप कहते हो वो कोइंसिडेंस है, वो रिस्क है, वो स्मोकिंग करता है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसे चल रहा है। मतलब ये इसको लॉजिकली आप एनालाइज कीजिए ना। या जब यंग पीपल जिनको कोई रिस्क नहीं है सडन ड्रॉप हो रहे हैं, यंग पीपल को स्ट्रोक हो रहे हैं, और अभी सीनेट हियरिंग में आ रहे हैं 75% ऑफ मायोकार्डाइटिस आर ड्यू टू द वैक्सीन, आ रहे हैं। उस टाइम जब इतना कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी होता है, कोई सेलिब्रिटी का डेथ हो रहा है, कोई डायरेक्टर का डेथ हो रहा है, कोई इसका डेथ हो रहा है, आज ही मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कार में कोई सडन डेथ, उनको बोलेंगे नहीं अभी लाइफस्टाइल ठीक करो, ये करो। अभी अचानक 3 साल में कितना लाइफस्टाइल चेंज हो गया लोगों का। यंग पर्सन 18 साल, 20 साल, 22 साल, वो बोलेंगे नहीं इट इज कोइंसिडेंटल लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह। फिर वो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आके भाषण देना चालू कर देते हैं। ये वो मालूम है, वो सबको मालूम है ये सब है। पर जब कोई और कोई 80 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 3 4 कोमोrbid होता, उसको कोविड पॉजिटिव होता, फर्स्ट डेथ इन दिस स्टेट, फर्स्ट डेथ इन कोविड क्लेम्स एन अदर लाइफ, ये हेडलाइंस आ रहे हैं। ये हेडलाइंस आ रहे हैं
और कुछ कुछ एंकर लोग इतने जोश में आ जा रहे हैं, 6 फुट की दूरी, मास्क जरूरी। अरे ये सब देखिए, एंथनी फॉची खुद पीछे हट गया, बोला कि जो 6 फुट की दूरी था उसमें कोई एविडेंस नहीं था। जब सीनेट ने पकड़ा उसको एविडेंस दो, पीछे हट गया। मास्क के ऊपर कई स्टडीज हो चुके हैं, कोई ये नहीं है। आज मैं देख रहा था एक डॉक्टर, बड़ा काफी उसका यूट्यूब में, ये अपना प्रैक्टिस भी प्रमोट करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। वो कार चला रहा है और वो यूट्यूब वीडियो बनाया है, कार में बैठ के इतना बड़ा मास्क पहना है। अरे हमने तो मास्क पहन लिया, आपकी मर्जी। मतलब वो एक डॉक्टर अकेला कार में बैठा है, आजू बाजू कोई नहीं है, वो एक दे रहा है। मतलब ये अभी जितने लोग मास्क पहनेंगे उससे पता चलेगा कि कितना ये प्रोपेगेंडा इनका काम कर रहा है। ये एक इंडिकेटर हो जाता है। Yeah. ये भी एक मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस में आता है। तो डॉक्टर फिर बोलता मर्जी है, फिर बोला मैं तो डराना नहीं। और वही डॉक्टर रोज आके धीरे धीरे करते हैं, लोग धीरे धीरे आपको ये करते हैं, सिड्यूस करते हैं कि देखो डरना कुछ नहीं, डरना कुछ नहीं, पर सावधानी जरूरी है, नीचे से एक लाइन डाल देंगे। तो लोगों के एंड में जो टेक होम मैसेज रहेगा, ये तो यार हमको रीअश्योर कर रहे थे, पर वो सावधानी बोला और आज वो मास्क में आ गया। फिर बोलता अभी थोड़ा चिंताजनक बात है, यंग किसी का डेथ हो गया इधर, वो चिंताजनक है। अभी 140 करोड़ में एक दो कोई यंग पर्सन का, और उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया। पता नहीं उसको कंजेनिटल कुछ हो सकता बीमारी, उसका कुछ नहीं मालूम है, पर ये अभी जान ले रहा है। अच्छा, अभी रोज जब रिपोर्ट आते हैं कि यंग पर्सन का टीका लगाने के बाद डेथ हो गया, उस टाइम ये डॉक्टर साहब को चिंता नहीं होता है। तो Yeah. ये आप देखिएगा कितना ये साइकोलॉजी पे खेलते हैं, स्मार्टली खेलते हैं। और ये पक्का उसका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। फिर आपको नोवावैक्स कंपनी उसको कमीशन भी देंगे, Mhm. उसको ये भी देंगे। और वो यूट्यूब, उसके बहुत फॉलोअर्स है और सब तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत सही बोलते हैं, आपने जान बचा ली, वगैरह 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 वगैरह। किस पे? एक वायरस जिसका सर्वाइवल 99.99% है। ऐसा कोई डिजीज है ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में जितने डिजीज है, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ज्यादा मोर्टालिटी है कोविड से। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ऐसा अगर हमको बॉलर मिल जाए कि जो हमेशा फुल टॉस देगा और ये देगा, हम बैटिंग करना पसंद करेंगे। तो अभी देखिए, डॉक्टर्स का जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी चांदी हो गई है। Uh, हाँ, उन लोग के पास पेशेंट घबरा के आएंगे, फिर वो बड़ी बात करके कुछ भी करके। दूसरे बात, आपके फार्मास्यूटिकल को चांदी हो गया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को चांदी हो गया। हाँ, एंड में बोलेंगे घबराने की बात नहीं है, पर सावधानी बरतना है। अरे भाई सावधानी बरतो, आप ट्रैफिक एक्सीडेंट से सावधानी बरतो नहीं बताएंगे, जिसमें 400 बच्चे रोज, यंग पीपल डाई। 400 पीपल इन इंडिया, आप स्टैटिस्टिक्स देख लो, एवरी डे 400 पीपल आर डाइंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और उसके 10 टाइम्स ज़्यादा अपाहिज हो जाते हैं। अब आप लॉन्ग कोविड खींच रहे हो, ये लॉन्ग ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं, आपको डर लगता है। आपका बच्चा जब मोटरसाइकिल लेके निकलता है बिगर हेलमेट का, आप उसको टोकते नहीं हो कि देखिए सावधानी बरतानी है। हाँ, आप यहाँ मास्क पहन के जा रहा है और हेलमेट नहीं पहना है। ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोक रहा है हमारे यहाँ कई सिटीज में। ट्रैफिक रेगुलेशन नहीं है कहीं, जिसमें कि 400 यंग डेथ्स डेली होते हैं। yes. तो और ये उसको आप, भी ये एक आरटीपीसीआर कॉमन के सेंस द्वारा है इसमें। उसको भी कोविड के अंदर डाल दिया ना उस जमाने में। हाँ, उसमें भी जब फर्स्ट वेव में हुआ था कि जो भी अस्पताल आता उसका पहले आरटीपीसीआर करना है, अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट से कोई पॉजिटिव है, वो कोविड काउंट में जाता है, कोविड डेथ में जाता है। तो ये अभी दूसरे तरीके से हो रहा है हमारे यहाँ। नेग्लेक्टेड डिजीजेज है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, डायबिटीज का इलाज नहीं है, हाइपरटेंशन का नहीं है, बेचारे आते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है, डेथ हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। और आप हर जगह डील कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये कर रहे हो। अरे भाई, मॉक ड्रिल करते करते जेन्युइन पेशेंट्स मर रहे हैं, और उनका एक आरटीपीसीआर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हाँ, वायरस तो कब से फैला हुआ है। yeah. अभी थोड़े, वो तो 5 साल हो गए हैं, चांदनी, चाइना से चांदनी चौक आ गया वो। तो उसमें कौन सा मेजर आपको रोक रहा है? उसके बाद आप कर रहे हो अभी 6 फीट की दूरी और मास्क जरूरी। एक वो कोचिंग क्लास वाला कोई खान सर है, वो बता रहे थे बच्चे के दिमाग में भी डालना है डर। हम्म, हाँ, तो वो कोचिंग का चालू हो जाता है आजकल। तो हम्म। जिंदगी भर कोई कोच आ जाता है, आपको उल्टी सीधे बातें करता है, आपको ब्रेन वॉश कर देता है। आप डराते अपना रहिए, दिमाग क्योंकि आपका दिमाग जो है एक एक तरह का ये हो गया है वो। आपको डराएंगे, आप डर जाओगे बस।
पोजीशन है। मैं मेरे पहचान वाले हैं सिंगापुर में, तो मैंने पूछा भाई क्या हाल है, सिंगापुर खत्म हो गया क्या? क्योंकि इतना हल्ला कर रहा है। वो मैं सोचा यहाँ पे, क्योंकि सिंगापुर का जो रिपोर्ट था कि एक हफ्ते में 13,000 केसेस बढ़ गए, 13,000। हम्म। अब यहाँ पे 3,000 में इंडिया में ये चल रहा है, मतलब तांडव मच गया कि 3,000, वहाँ 13,000। और सिंगापुर का पॉपुलेशन 50 लाख है। एक हमारा पूना शहर से भी छोटा है, पूना छोटा। शहर का 80 लाख है पॉपुलेशन। सिंगापुर में 13,000 केस हो गए और वहाँ लाइफ नॉर्मली चल रहा है। मैंने पूछा क्या हालत है वहाँ, बोला हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो तो स्कूल वाले कैंप में ले गए हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम्म। अभी मेरे को लगता है कि ये कमाल है पैंडेमिक ट्रीटी का, ये कमाल है। नोवावैक्स इज ऑन द पाइपलाइन या। अभी, क्योंकि अभी बन तो गया है। हम्म। अभी वो बन गया है तो इस्तेमाल तो करना है ना। हाँ। अभी जब खाना बना दिया है तो परोस। मंडप तैयार है, तो किसी को भी दूल्हा दुल्हन को पकड़ के बैठा दो, तो बेटा। कोविड-19 को बैठा दो, उससे निकाह करा दो उसका, और खाना बांटो जो नोवावैक्स है, पनीर टिक्का। వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. చలియే मैं दिखाता हूं. तो ఇప్పుడైనా డాక్టర్ అమితాబ్ బెనర్జీ గారు చెప్పింది వినండి, భయపడకండి. మళ్ళా కొత్త వ్యాక్సిన్ నోవామాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తయారైపోయింది. ఏం చేయాలి? మళ్ళా భయపెట్టాలి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ భయపెట్టిస్తే భయపడతాం. అది ఆరోగ్య విషయం. సో అందు గురించే కోవిడ్-19 కానీ ఏది కానీ భయపడకండి దయచేసి. वो इसी वेरिएंट के बना है, JN1 जो कि सर्कुलेट हो रहा है, उसी का वेरिएंट का वैक्सीन तैयार है। ओमिक्रॉन नया अपडेटेड वैक्सीन, लेटेस्ट एडिशन। और वैक्सीन ఇంత తొందరగా తయారైతదా? क्या वैक्सीन टीका इतनी जल्दी तैयार होगा? 10 साल मिनिमम लगता है, लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी नया नया वेरिएंट की कहां से आ रहा? इसीलिए प्रधानमंत्री से लेके हर कोई राहुल गांधी तक पूछिए भाई ये टीका में क्या है, ये किस तरह बना? अगर इतने केसेस बढ़ रहे, आप बिहार में क्यों इलेक्शंस वगैरह ये सब तांडव क्या है? रोज का रोज ये मिस वर्ल्ड का जो हैदराबाद में हो रहा है, तेलंगाना में, ये एक तांडव क्या है? रेड्डी साहब, एक मैंने एक दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर है, अभी मैंने आपको लिंक भेजा है। हाँ। उन्होंने दावा किया है कि ये बकवास है कोविड। अब ये वो वाला लिंक भी देख लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का सीनेट वाला है, हमारे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये बकवास है कोविड। और 2 मिनट का। निकाल देंगे उनको. हाँ, हो सकता है, या जेल में डाल देंगे। अरे भाई, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य शाखा मंत्री, क्या आप रहोगे, बच पाओगे मोदी और अमित शाह और गुजराती लॉबी इसकी हाँ? अब इनके तांडव बजाएंगे पब्लिक इस बार. ये 72nd रिपोर्ट है, लेकिन हम पहले यहां जाते हैं. जो डॉक्टर साहब ने ताजा ताजा खबर पहले ये दिखाते हैं, हम देशी दिखाएंगे पहले आपको, बाद में विदेशी. दिल्ली 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 का चीफ मिनिस्टर अभी भेजा मैंने आपको, उसको मैंने बस बताइए। यही दिखा रहा हूं. आप जो भेजा है. COVID. Right now, from till 11 o'clock, there is no COVID. हमारे यहाँ बिहारी में कहा था हवा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ हवा है। आई एम इंश्योर करते हैं कोविड की कोई विषय नहीं है। कोई 2-4 पेशेंट एडमिट हुए तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल तैयार है। देयर इज नो कोविड राइट नाउ फ्रॉम टिल 11 o'clock, देयर इज नो कोविड। हमारे यहाँ बिहारी में कहा था हवा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ हवा है। आई एम इंश्योर करते हैं कोविड की कोई विषय नहीं है। कोई 2-4 पेशेंट एडमिट हुए तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल तैयार है। मोदी अमित शाह जी, आरोग्य शाखा मंत्री, राइट नाउ सुनिए, टिल 11 क्या इनको भी बदलाओगे? हमारे यहाँ इलेक्शन रैली बिहार में जा रहे हैं, मिस इंडिया हो रही है तेलंगाना में, हर जगह अमित शाह सब घूम रहे हैं, कोविड की कोई विषय अदानी अंबानी कोई घूमते हैं. 2-4 पेशेंट एडमिट हुए तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल तैयार है। देयर इज नो कोविड राइट नाउ फ्रॉम टिल 11 o'clock, देयर इज नो कोविड। हमारे यहाँ बिहारी में कहा था हवा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ हवा है। आई एम इंश्योर करते हैं कोविड की कोई विषय नहीं है। कोई 2-4 पेशेंट एडमिट हुए तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल तैयार है। So now this is clear. I hope the Delhi health minister itself making fun of what Modi and Amit Shah's government is doing. And just a shame how BR chief minister and Andhra Babu Chandrababu Naidu
they are supporting these nonsensical things. These are the supporting parties. People will start questioning you. See, this is how in Telugu they are creating a fear. Ask them, where is COVID? And ask them, the channels or papers who are representing this, ask them to give the details of those patients, which house they are staying in, which panchayat, which district, which state you demand and take, and why they were tested with PCR. Are there no other diseases in such individual? Why they are not testing? And also ask them how guaranteed this PCR test is. And you also check this PCR test random. You buy this equipment, it will show you positive. That means it is false positive. You are healthy. आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट करिए आपको पॉजिटिव आएगा. लोगों को गुमराह कर रहे हैं. ప్రజలను బెదిరిస్తున్నారు. మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి, మీకు ఏమీ లేదు, కానీ దాంట్లో పాజిటివ్ అని చూపిస్తుంది. సో బెదురుతారా? మామూలుగా తుమ్ములు వచ్చిపోయేటువంటి ఇది ఆలోచన చేయండి. అందు గురించే మేము అన్ని ఆధారాలతో చూపిస్తున్నాం. ఎనీవన్ కెన్ డిస్ప్యూట్ విత్ us. మై నంబర్ ఇస్ 9440465339. I will connect you from wherever you are. All those media, we are challenging them. Media, newspapers, come out, we will discuss. Why are you creating this fear again? This pandemic treaty, panchayat to parliament, we should be discussing. Is India discussing? They are showing Pakistan-India war. They are showing Bihar elections. Then what about this COVID-19 pandemic treaty? Why there is no discussion? Because these political parties are getting huge money in the form of electoral bonds, which have already been exposed by Supreme Court. ఎందుకంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళకు పార్టీలకు ఈ ఫార్మా కంపెనీల ద్వారా, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ इनको फार्मा कंपनीज द्वारा आपने देखा है. सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जब पर्दाफाश किया, ये फार्मा कंपनी और मेगा जैसे भ्रष्टाचार कंपनियां किस तरह ये इनको पैसे दे रहा है. हजारों करोड़ रुपया आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है. इसीलिए ये लोग गुमराह की चक्कर. आई एम ऑन रिकॉर्ड. यू प्लीज कम. हाउ डिड यू distribute remdesivir from BJP offices? What does or what did remdesivir contain? I am challenging you. Enough now. Let science prevail. Now we will come to this. I'll come to later. Now we will listen to this latest one from Australia. But it has been planned over decades. The changes to legislation in this country were done so that they could control doctors and people. But the people are waking, and it's thanks to people like Dr. Altman and all the presenters here today, thanks to people like Senator Babette and Craig Kelly. We know and we knew that this is all bullshit and that we've been had. But we are going to hound you down, the people that are guilty. We are going to hound you down and hold you accountable, and we will expose your global agenda so that the people of Australia can be free in the future. Because I love my kids, and I'm looking forward to my grandkids, and we are going to save this country. It's become clear that people in this country and globally have been steamrolled. It is also clear that it has been coordinated globally. It is also clear that it has been integrated, not just over 6 months, not just over 2.5 years, but it has been planned over decades. The changes to legislation in this country were done so that they could control doctors and people. But the people are waking, and it's thanks to people like Dr. Altman and all the presenters here today, thanks to people like Senator Babette and Craig Kelly. We know and we knew that this is all bullshit and that we've been had. But we are going to hound you down, the people that are guilty. We are going to hound you down and hold you accountable, and we will expose your global agenda so that the people of Australia can be free in the future. Because I love my kids, and I'm looking forward to my grandkids, and we are going to save this country. Sir, before I play, sir, your comments. Now I think it is very clear, at least Australia, India, shamefully, all politicians, people will hunt you down. आपको नहीं छोड़ेंगे राजनीतिक दल और राजनीतिक जो करने वाले लीडर है, जो भी पार्टी के हो. जिस तरह झूठ फैला गया, डर फैला गया, कितने लोग मारे गए और कितने लोगों की
रोजगारी खत्म हो गई, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर एम्प्लॉयमेंट, దే హావ్ లాస్ట్ ప్రెషియస్ లైఫ్, దే ఆర్ ఇన్కెపాసిటేటెడ్, దే విల్ నాట్ స్పేర్ యూ. ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోయారు. ఈ రోజు వరకు ఆ టీకాల వల్ల, ఆ రెమిడిసివిర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల, ఆరోగ్యంతో చెలగాటం వల్ల వాళ్ళందరూ బాధపడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని వదలరు రాజకీయ నాయకులారా, రాజకీయ పార్టీలారా. ఈ సందేశం ఆస్ట్రేలియా సెనేటర్ మాల్కమ్ రాబర్ట్స్ నుంచి. సార్ ప్లీజ్. हाँ, ये देखिए, ये कहते हैं कि काफ़ी सालों से प्लान्ड है और हो सकता है, क्योंकि आप देखिएगा वायरस सडनली आ गया, कोई एनिमल होस्ट नहीं मिल रहा है, तो लैब से जनरेट हुआ. उसके बाद पैंडेमिक के शुरू में पूरे वर्ल्ड में छोटे से छोटे कंट्री, बड़े से बड़े कंट्री में इतना टेस्टिंग, इतना ट्रेसिंग, इतना ट्रैकिंग कोई डिजीज़ के लिए पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में नहीं हुआ है. और हमारे कंट्री इतना बड़ा कंट्री है, 24 घंटे में कितने केसेस हो गए, कितने डेथ्स हो गए, पूरे स्टार्टिंग से इतना जल्दी इन प्लेस कैसे हो गया? इसका मतलब पहले से बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग लगता है. हमारे यहाँ टीबी 100 साल से है और अभी कुछ कम नहीं हो रहा है. अभी टीबी का हमारा डायग्नोस्टिक्स नहीं वर्कअप कर पाए, टीबी का जीनोमिक सीक्वेंस हम नहीं कर पाए, और एक वायरस जिसका कि 99.99 है उसका हम जीनोमिक सीक्वेंस कर रहे हैं. और वो किट भी आ गया है, 1.5 करोड़ का मशीन भी आ गया है, और टेस्टिंग भी हो रहा है जीनोमिक. और जो बीमारी हमारा इतने सालों से है, और हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो रहा है, तो एक ही वायरस के पीछे हिस्ट्री में इतना कोऑर्डिनेशन, इतना ये वैक्सीन भी बन गया उसका 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर. तो ये तो एक और पूरे वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली तो ये तो 2000 शायद 19 या 18 में एक इवेंट 201 हुआ था. WHO, विल गेट्स वगैरह ने किए थे, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, और ये पैंडेमिक का तैयारी हो रहा था. सब समझ रहे थे कि शायद जेन्युइन, पर ये तो अभी जिसने एक्यूरेटली सब कुछ हुआ, जितने फाइन कोऑर्डिनेशन से हुआ, इसमें तो जो कह रहे हैं ये सीनेटर साहब, ये तो सच लगता है. पहले हम भी लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. तो ये अभी हम ऐसे लग रहा है कि सपना देख रहे हैं, या सपना देखे हैं 5 साल से, और सपना खत्म ही नहीं हो रहा हमारा नाइटमेयर. तो अपना खत्म ही नहीं हो रहा नाइटमेयर में. एंड ये भी है कि आप अगर डर रहे हैं, आपको डराएंगे ये. आप डरो, ये डराएंगे. तो इस तरह की एक चाल ये लोग चल रहे हैं. तो इसलिए आपको बचना है, ये आपके हाथ में है. हम ये भी बता देते हैं कि और एक बार केनेडी ने क्या कहा WHO. शर्म आना चाहिए हमारे देश, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताओं को. नो सॉरी, Right now from I've already shown you this. Yeah. To my colleagues in public health, I'm Robert F. Kennedy Jr., the U.S. Health and Human Services Secretary. As you know, President Trump has made the decision to withdraw the United States from the World Health Organization. I'd like to take this opportunity to offer some background to that decision, and more importantly, to chart a future path toward global cooperation on health and health security. Like many legacy institutions, the WHO has become mired in bureaucratic bloat, entrenched paradigms, conflicts of interest, and international power politics. While the United States has provided the lion's share of the organization's funding historically, other countries, such as China, have exerted undue influence over its operations in ways that serve their own interests and not particularly the interests of the global public. This all became obvious during the COVID pandemic, when the WHO, under pressure from China, suppressed reports at critical junctures of human-to-human transmission, and then worked with China to promote the fiction that COVID originated from bats or pangolins rather than from a Chinese government-sponsored research at a biolab in Wuhan. ये सुनिए,
रॉबर्ट केनेडी क्लियरली बता रहे हैं कि ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आके WHO ने जो जंगली जानवर वहां से ये कहा था, लेकिन उनके रिसर्च लैब से ही ये बाहर आया, लोगों को गुमराह और ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं लेकिन छूतिया बनाया गया। हम सही अर्थ से ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब चाइना और WHO मिलके वुहान वायरस कोविड-19 को लाया, इसके पीछे मोदी और अमित शाह की सरकार क्यों जा रही है चाइना का इसके ऊपर? और वो पैंडेमिक ट्रीटी भी WHO के साथ चाइना मिला हुआ है। चाइना के साथ क्या संबंध है मोदी, अमित शाह, बीजेपी और RSS का, आज बताना पड़ेगा। और यही बीजेपी RSS का ही नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस से लेके UPA के सब दलों का, DMK हो या PRS हो, YSRCP हो या कोई भी दल, समाजवादी पार्टी हो, आप लोग चुपचाप क्यों है? ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस हो या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी, वो भी एक बैरिस्टर है, ये पूरे राजनीतिक दल चुपचाप क्यों है? ये लोग टीका लिया है, ये और इनके कुटुंब के लोग, तो क्या कौन सी टीका है और वो टीका में क्या था? और जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको क्या दिया जाता है ताकि ये सब सही सलामत है? लेकिन जब आम आदमी टीका लेता है तो वो मर जाता है। आम आदमी, जब सभी नहीं उसमें छोड़े, और बाकी को उनके कॉम्प्लिकेशंस, और जो हॉस्पिटल जाते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए जब टर्की की बात करते हैं, युद्ध का पाकिस्तान का सपोर्ट दिया और चाइना उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन चाइना के साथ कोई ट्रोलिंग नहीं चल रही, बीजेपी हो या RSS हो, और मोदी और अमित शाह शांत है। तो वही चाइना आज WHO के पीछे है। खुला सा रॉबर्ट F केनेडी, वो एक सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशंस के, खुले शब्द में आप सुनिए क्या बताया। इसके बाद भी हमारे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता क्यों पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चर्चा क्यों नहीं कर रहे? जब मोदी ने पूरे देश को गुमराह किया था, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं बनता था? कांग्रेस क्यों चुप है? ये भी बताना पड़ेगा राहुल गांधी को। Hello, everybody. Thank you for that introduction, and thank you for minding the agency during my confirmation process. Oh, sorry, I have gone to another one. तो ये बताना चाह रहा था। My colleagues in public health, I'm Robert F. Kennedy Jr., the U.S. Health and Human Services Secretary. As you know, President Trump has made the decision to withdraw the United States from the World Health Organization. I'd like to take this opportunity to offer some background to that decision, and more importantly, to chart a future path toward global cooperation on health and health security. Like many legacy institutions, the WHO has become mired in bureaucratic bloat, entrenched paradigms, conflicts of interest, and international power politics. While the United States has provided the lion's share of the organization's funding historically, other countries, such as China, have exerted undue influence over its operations in ways that serve their own interests and not particularly the interests of the global public. This all became obvious during the COVID pandemic when the WHO, under pressure from China, suppressed reports at critical junctures of human-to-human transmission and then worked with China to promote the fiction that COVID originated from bats or pangolins rather than from a Chinese government-sponsored research at a biolab in Wuhan. Not only has the WHO capitulated to political pressure from China, it's also failed to maintain an organization characterized by transparency and fair governance by and for its member states. The WHO often acts like it has forgotten that its members must remain accountable to their own citizens and not to... No, इसीलिए हम ये बताया कि आप जानकार हो जाइए और इससे बाहर आइए, वरना हमारी जिंदगी बदतर हो जाएगी। क्योंकि ये स्वास्थ्य और जीने का हक हमारा है। कोई पार्टी, कोई मोदी हो या कोई राहुल गांधी हो, कोई भी हो, वो केवल सेवक है। They are just public servants. And how come a public servant boss over constitution? That means we people, about our health and our right to life. So we are providing you information, you decide. And I'll just play the senator once and then I'll take last. Become clear that people in this country and globally
have been steamrolled. It is also clear that it has been coordinated globally. It is also clear that it has been integrated, not just over 6 months, not just over 2.5 years, but it has been planned over decades. The changes to legislation in this country were done so that they could control doctors and people. But the people are waking, and it's thanks to people like Dr. Altman and all the presenters here today, thanks to people like Senator Babette and Craig Kelly. We know and we knew that this is all bullshit and that we've been had. But we are going to hound you down, the people that are guilty. We are going to hound you down and hold you accountable, and we will expose your global agenda so that the people of Australia can be free in the future. Because I love my kids and I'm looking forward to my grandkids. And we are going to save this country. It's become... Sarji, I think I need not show हाँ your comment, Sarji. अभी जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का जो भाषण दिया था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब डब्ल्यूएचओ के आंख में आंख, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा था मई 27 तक, आंख में आंख डाल के बात किया। इतना मतलब एविडेंस है उनके पास कि कोई ने उनको रिपोर्ट करने का हिम्मत नहीं हुआ। और जितने भी कंट्रीज जो बैठे थे रैप, उनको इतना बेशरम है कि उनको वो साइन करके आ गए टीटी। और अभी ऑस्ट्रेलिया, तो ये फर्स्ट है। सेकंड है कि बार बार अभी जब डब्ल्यूएचओ से हट गया यूएसए, चाइना और डोमिनेंट रोल उसमें करेगा। और चाइना ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, $500 मिलियन दिया उन्होंने चाइना को। तो बिगर इतना पैसा देके जब चाइना पूरा डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा था, तो अभी उतना अभी एक्स्ट्रा वैक्यूम जो यूएसए ने छोड़ा है वो चाइना भर रहा है। तो वो तो पूरा मुट्ठी में रहेगा, और हम उसी बिस्तर में जा रहे हैं जहाँ चाइना बैठा हुआ है, उसी टेंट में जा रहे हैं जिसको कहते हैं। तो एक प्रकार से अजगर है जिस पानी में, उस पानी में हम पैर डाल रहे हैं। तो क्रोकोडाइल से बच के रहना चाहिए, चाइनीज ड्रैगन से बच के रहना चाहिए। ये हेल्थ के बात मैटर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का मैटर है। तो ये हमको और हमारे पार्लियामेंट में प्रतिनिधि होने चाहिए जो ऐसे सीनेटर्स जैसे बात किए, या रॉबर्ट कैनेडी जैसे। डेमोक्रेसी है हमारा, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है, अमेरिका हमारा डेमोक्रेसी इतना शांत क्यों है? तो ये बड़ा मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ डेमोक्रेसी, इसका मतलब। Wonderful, wonderful. And what is that? What should be the take for India from all these things? Now people are getting scared. लोग डर रहे हैं। तो इस शो से इंडिया क्या को बता देंगे हम यूएस सेनेटर के? और इतने बेशर्मी कैसे हो सकते ट्रीटी, जब रॉबर्ट कैनेडी ने क्लियरली बताया ये वुहान, चाइना और डब्ल्यूएचओ मिलके ये बड़ी साजिश बदमाशी की है कोविड-19 की। आधार के साथ उन्होंने पूरा सब कुछ कहा है। ये कहने के बाद भी हमारे मोदी और अमित शाह भारत क्यों साइन कर रहा है, और चाइना के साथ इनका संबंध क्या है? बाद में भी निकल सकता है, जब वो देखेंगे, हवा का रुख देखेंगे। ये पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होते हैं ऐसे, वो हवा का रुख देखते हैं। जब देखेंगे कि वोट दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी देखिए ये वोट से, इसी से पीपल पावर से ट्रम्प आया है, क्योंकि ट्रम्प ऐसे में पॉलिटिक्स उसका बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। पर बिकॉज ऑफ द पीपल अंडरस्टूड दैट ये ग्लोबल ये चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, हमारा आज़ादी जाएगा, तो उन्होंने लाया है। तो हमारे देश में भी अभी देखिए दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और दूसरे कंट्री में भी जागरूक हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी सीनेटर ने दिया है। और हमारे यहाँ देखिएगा अभी पैनिक नहीं है। एक चीज़ मैं अच्छा देख रहा हूँ, पब्लिक पैनिक नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं पैनिक का, उसके नीचे वाले कमेंट्स में देख रहा था, 90% लोग कमेंट्स दे रहे हैं कि ये समझ रहे हैं। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ने जो कमेंट दिया है हुआ, वैसे ही कमेंट्स आ रहे हैं अपने अपने भाषा में। और रेड्डी साहब ने तो बहुत तगड़ा भाषा इस्तेमाल किया, वैसे भाषा में भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा, जैसे लोगों को पता चलेगा, नेता देखेगा, पॉलिटिशियन देखेगा कि हमारा वोट बैंक है। नोट और वोट दो चीज़ है उसको। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से काम चल रहा था, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड धरा रह जाएगा अगर वोट चले गए तो इट इज़ पब्लिक पार्टिसिपेशन विच इज